Stuvely Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two to a seasoned professional. We in Stuvely Technology emphasized academic and research development as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Stuvely Technology bridges the gap between employer and employee via product or specific selection and pre-employment training. So, just for a quick look, I am sharing my screen and showing you all the unique services which Stuvely Technology family holds. So, I'll be sharing my screen now. So, I hope my screen is visible to you all. Okay, so for learning and teaching platform, we have Prayog. For internship training program, we have StuIntern. For professional resume builder, we have Resumeation. For job portal, we have Navrojan. For education, we have Vidyapun for searching schools and colleges and preschools. For psychometric test, we have Sudakshta. For research and PhD assistance, we have Anushra. So these are all the services which we offer at Stuvely Technology Private Limited. So I hope like you all are ready for today's session. So your trainer will be Saurabh Chaudhary. So he's been into training for a good time period. So he'll be teaching you now. So over to you, Saurabh sir. Good morning, all. Thank you, Arju ma'am. Good morning, all. How are you? Fine. Sachin, Akhilesh, Ravi. Fine, sir. Fine, sir. Okay, Akhilesh, Ravi, how are you? You can unmute your mic and speak. Ravi, you can, like, there is a button Fine, sir. on the left. How are you? Fine, okay. Akhilesh, आप कैसे हो? अखिलेश कैसे हो आप? अखिलेश लेफ्ट बॉटम पे नीचे एक बटन है माइक का, उसको उसको दबा के और अपना माइक खोलें और बोलें। सर अखिलेश अपने ऑफिस में है शायद, सो वो माइक ऑन नहीं कर पाएंगे उनका मैसेज। ओके ओके, he is from our team. No, he's not from our team. He's student, but he's in office. ओके ओके, फाइन. तो सचिन, सबसे पहले what we can do, okay, first of all, which language you are comfortable with, like English or Hindi? Sachin, Hindi is Ravi. language plate. हिंदी बढ़िया है. ओके, रवि, फॉर यू? सर हिंदी. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए, और मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, फिर आप अपने बारे में बता लेना. तो माय नेम इज ओके सर. सौरभ चौधरी. हाँ, I did my engineering in information technology, and I have experience of almost 7 years in training. I train people using in the tools of Python, data analytics, data science, machine learning. All right, and yes, I have taught more than 1,500 students till now. So I also teach Indian student and US student also. So I already taught many students. So yeah, तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि सचिन, आप Yes. अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई की है, और जी. बस यही. My name is Sachin from मैं सतना से हूँ.
I am completed bachelor degree BTech civil. I am working ओके professionally इंदौर में जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस वर्क। ओके ओके। जी। इसे अच्छा, तो सिविल बैकग्राउंड से आप हो? यस यस यस। ओके, तो सिविल से आपने कैसे वो बनाया कि अब मुझे आईटी में जाना है? एक्चुअली क्या, मैं सिविल में कर रहा था, पर वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट थी और मेरे को जम नहीं रहा था। काफी दिन किया वहाँ पर अच्छा जॉब, अच्छा, ओके। तो धूल मिट्टी हम्म। थी पूरी। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने सुना है। हाँ बहुत सारे सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट बोलते हैं कि काफी ज्यादा साइट पे, मतलब कि पूरा पूरा दिन जाता है हाँ, उनका पूरे साइट पे। दिन और मतलब कोई इसका कोई टाइमिंग नहीं फिक्स था, कभी टाइम भी हाँ चले हाँ, तो रात पूरा पूरा जल्दी दिन नहीं। बोलते हैं, हाँ पूरा पूरा दिन जाता है, 12 जी से भी ऊपर घंटे। और जी। प्लस पे भी जो है बहुत कम है, ऐसा बताते हैं मेरे को। ओके ओके सचिन, तो आप इंदौर से हो? यस, नहीं अभी मैं प्रॉपर तो सपना से हूँ, पर इंदौर में जॉब कर रहा था। सब सपना कहाँ पे है ये? इतना एमपी। आपने रीवा सपना सुना होगा। रीवा सुना है मैंने, हाँ रीवा हाँ सुना है। हाँ, रीवा के जस्ट बगल में सपनी है, उसके बगल में। ओके ओके, नाइस टू मीट यू रवि। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। रवि। रवि, अपना माइक खोलिए और बोलिए। हाँ, बोलिए। रवि, माइक खोलिए, मैं बिहार बोलिए। से हूँ। मैं बिहार से हूँ। ठीक। अच्छा, मैं माइक ओपन कंप्यूटर। नहीं हो रहा था क्या आपसे? माइक तो ओपन ही है सर। नहीं नहीं, हाँ अब हो गया। नहीं मतलब दिक्कत आ रही है क्या ओपन करने में उसको? हाँ, बार बार इस पे क्लिक अच्छा करके अच्छा, रखना पड़ेगा। मतलब हाँ हाँ, उसको उस पर क्लिक कर लेना आप, जैसे हाँ। माउस से क्लिक कर लेना माइक पे। हाँ बोलिए ठीक बोलिए। है सर। तो मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, बट फैमिली कंडीशन थोड़ा वीक हो गया था, इस वजह से जो है मैं जॉब को जो है प्रिपेयर किया। फिर अभी जो है अच्छा मैं प्रॉपर प्रॉपर जो है पावर स्टार कंपनी में जो है अच्छा जॉब, हाँ पावर स्टार कंपनी में जो है कंट्रोलिंग का जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। तो हाँ। पॉलिटेक्निक को किस फील्ड से की थी आपने? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से ही हो आप? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। तो अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या काम है? उसमें सर यहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बनते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिकल हाँ। वाले सेक्टर में चले गए, कंप्यूटर साइंस। हाँ सर, क्या करे, फैमिली कंडीशन वीक हो गया तो इतना जो संभालना अच्छा मुश्किल अच्छा अच्छा, था। वो मतलब वो, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ काम करना था तो आपने ले लिया वो काम। हाँ। तो अभी मेरा ओके कुछ ओके। अभी जो है उसमें बस आराम से जो जितने जॉब बने हैं उसका हम्म। पूरा डाटा उसका पूरा डाटा हायर करना पड़ता है हमें, बस आगे अच्छा, तक। ओके ओके कितने ओके। जॉब बने हैं, कितने तैयार होने, कितने ऑर्डर हुए हैं, ये सब हायर करना पड़ता है बस। अच्छा, तो आपने कैसे आईटी में आने का कैसे प्लान किया, सीएसआईटी में कि वापस? सर हमें तो पहले से ही जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट था। तो हम हम्म। सोचे कि जो अब थोड़ा सा जो है कंडीशन सही हुआ है, अब फिर से इसी फील्ड में लग जाए। इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा, हाँ चूज ठीक है। किया। और फिर मोबाइल पे सर्च हुआ तो मैम से मुलाकात हो गई, बातें हुई, तो मैम ने पूरी चीज बताया हम्म। मुझे। हाँ। नहीं, बढ़िया फील्ड है, आप इस पे करें और काफी स्कोप है आगे, क्योंकि आजकल वैसे भी। अच्छा, आपका जो है फुल स्टैक वाला कोर्स है या डेटा साइंस वाला कोर्स है आपका? मेरा तो ये डेटा साइंस पाइथन का है। डेटा साइंस का ना, ठीक है, ओके। हाँ। अखिलेश, ओके ओके, थैंक्स मतलब बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अखिलेश, आप नहीं बता पाएंगे तो आप मैसेज कर सकते हो। चलो कोई नहीं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे कोर्स चलेगा हमारा। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, मैं सबको बता देता हूँ क्या क्या कोर्स चलने वाला है, किस हिसाब से चलेगा। ओके सर। फिर सर। वाइड वाइड स्क्रीन दिखेगा तो मेरे को बताना अभी। यस सर। अम, यस सर। क्या है? व्हाइट स्क्रीन आ गई। लोडिंग दिख से रहा है वाइट। ना वाइड स्क्रीन? ठीक है। यस सर, चल रहा ठीक है। है ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि कैसा रहेगा हमारा कोर्स। तो बेसिकली हम्म तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहला चीज हमारा रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होगा, बेसिकली हम लोग, क्योंकि आप दो बैच वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, एक वेब डेवलपमेंट वाले हैं जिनको वेबसाइट बनानी है और एक डेटा साइंस वाले हैं। ठीक है, वो बाद में सब कुछ हो जाएगा, पर थोड़ा सा कोर्स की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक होता है, एक वेब डेवलपमेंट वालों का कोर्स है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट वालों का है, और दूसरा है हमारा डेटा साइंस। हम्म ठीक है, तो फिर क्या होगा कि तो ये दो कोर्स मतलब हम लोग के पास ही हैं। ठीक है, तो जो जो वेब डेवलपमेंट में है उनका कोर्स कैसे चलेगा, उनका कोर्स चलेगा ऐसे। सबसे पहले उन्हें करना पड़ेगा पाइथन। फिर उनके बाद उनका होगा जैंगो। फिर होगा HTML और CSS। तो सचिन, आपका फुल स्टैक है, राइट? डेटा साइंस। अच्छा, आप दोनों को डेटा साइंस है, ओके। ठीक है, तो जिसका फुल स्टैक है उसका क्राइटेरिया ऐसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि शुरू के कुछ सेम ही है, बस थोड़े लास्ट में चेंजेस हैं। और जिनका हमारा डेटा साइंस है वो पाइथन करने के बाद हमारे साथ करेंगे पांडास, उसके बाद मैटप्लॉटलिब, उसके बाद हमारा सीबॉन, उसके बाद हमारा मैथ्स फॉर डेटा साइंस, और उसके बाद है उनका मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये जिस हिसाब से मतलब आप लोग बोल रहे हो कि दोनों डेटा साइंस के ही हो, तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे ये वाला। जी जी ठीक। ठीक है, तो हम राइट साइड वाला जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक। और एक चीज ये है कि ये वाला हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पाइथन पाइथन दोनों की शुरू में सेम है। ठीक है, तो आप फुल से भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा साइंस से हो फिर भी आपको पाइथन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग डेटा साइंस से ही हो। अखिलेश का थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है कौन से हैं किससे हैं वो। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं पाइथन, पाइथन करते हैं और उसके बाद चलते हैं। ठीक है, ये सारा जो आपका पूरा कोर्स है वो 24 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा, 24 क्लासेस में। मेरा फुल स्टैक है। हाँ हाँ, आपका फुल स्टैक है ना, तो आप भी पाइथन करो, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे जैंगो से। ठीक है, आपके लिए। और बाकी जो डेटा साइंस वाले हैं वो मुझे बाद में ज्वाइन करेंगे, जब मैं ये वाला बैच में पांडाज और ये सब करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पाइथन दोनों में सेम है, तो हम लोग अभी
कर देते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे पाइथन से। सर वन क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए। रवि, कुछ क्वेश्चन पूछना था आपको? यस सर, डेटा साइंस और वो डेवलपमेंट में डिफरेंस चाहिए सर। अच्छा, डेटा साइंस में, चलो मैं आपको जो लोग वो करते हैं, for example, जो लोग फुल कर डेवलप कर रहे हैं उनको। चलो, वॉइस सही नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, सर आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही क्लियर है नहीं आवाज? आ रही सर। यस सर, कोई वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी सर। ओके, भी क्लियर आ रही है? हाँ, आप सही आ ओह रही है सर। यस, ये आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही है क्लियर। जी सर, आ रही है सर अभी। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या है डेटा। डिफरेंस दोनों में। ठीक यस है, तो यस। डिफरेंस की बात कर लेते हैं। हम्म। तो डिफरेंस, देखिए कोर्स में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारे होते हैं फुल स्टैक वाले, पहले मैं उनका बता देता हूँ। वो क्या होता है कि वो बनाएंगे वेबसाइट्स। ठीक है, जो हमारे फुल स्टैक करेंगे वो बनाएंगे हमारा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। और हाँ, और जो हमारे डेटा साइंस में है वो क्या करेंगे, जो डेटा का यूज़ करके जो फॉरकास्टिंग होती है, फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, वो करते हैं। ठीक है, तो दोनों फील्ड में थोड़ा फर्क है। तो आप अगर फुल स्टैक आपने लिया है तो आप करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, आप वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, जैसे आपने प्रयुक्त का वेबसाइट देखी है, प्रयुक्त की? प्रयुक्त की वेबसाइट तो आपने देखी होगी। ठीक है, जो फुल स्टैक कर रहे हैं, प्लीज़ ये पेन मत चलाएं आप। सॉरी सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो फुल स्टैक कर रहे हैं हमारे फुल स्टैक, हम्म। वो बनाएंगे हमारा वेबसाइट। मतलब वो लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनती है वो सब। ठीक है, तो आपने यस। प्रयोग की वेबसाइट देखी होगी, तो प्रयोग जैसी वेबसाइट है वो हम बना सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट करके। ठीक है, और जो हमारा जो ये होता है डेटा साइंस, वो थोड़ी डिफरेंट है। आप लोगों ने डेटा साइंस ली है, सचिन और रवि, तो आपने डेटा साइंस के बारे में आप क्या जानते हो वैसे? नहीं सर, जब कैसे मेरी आपने ये ऑप्ट किया? एक मिनट सर। जब मैम से बात हुई थी तो मैंने कहा था मैम मुझे पाइथन करना है और यहाँ से हमको डेवलप में आगे बढ़ना है। ठीक। मैम से इतनी बात हुई ठीक थी है। मेरे। हाँ। बट मैं जो है ये समझ नहीं पाया जो ये अच्छा, डाटा ओके। साइंस। हाँ, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन किया हूँ सर। अच्छा, ओके, ठीक है। इसको और आप। सचिन, आप ना बताएं, आप डेटा साइंस के बारे में क्या जानते हैं? माउस छोड़ दीजिए ज़्यादा आप, कुछ सचिन। डाटा का एनालाइज करना पड़ता है, प्लस जैसे इन्होंने बोला कि आप मैथ से हैं तो अच्छा कोर्स रहता है, डाटा साइंस आप कर लीजिए।
अभी मैथ अच्छी आती है तो। अच्छा, डेटा साइंस कर लें, हाँ। नहीं, हाँ, सही बताया उन्होंने, सही बताया वैसे तो। डेटा साइंस ऐसी फील्ड है, काफी बूम कर रही है इस टाइम, सही बताऊं तो आपको, ठीक है। जी बहुत अच्छा बूम कर रही है इस टाइम। जितने अब तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, राइट? जी। यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डेटा साइंस जो करेगा वो ही कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेटा साइंस में क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि डेटा आपको पता ही है क्या क्या होता है कि मेरे कॉलम से हमारा डेटा होता है, राइट? जैसे नेम हो गया, एज हो गया, इनकम हो गई। तो ऐसे इंफॉर्मेशन होती है, राइट? एक्सेल फॉर्म की आप शीट देखी होगी। फिर वैसे उसी सर, डेटा को यूज करके। हम्म। वैसे मैं सर सीएसएस में जब बोलिए था तो रवि। उसमें भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था मुझे भी। हाँ, टेक्निकल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। हम्म। ये नहीं नहीं, पढ़ाया गया देखिए, था मुझे। मैथमेटिक्स इसमें है, डेटा साइंस में। पर इतनी मैथमेटिक्स है, पर वो मैं आपको समझा दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स इसका। हाँ तो इसके मुझे मैथमेटिक्स में आपको बस थोड़ी बहुत। हम्म। हाँ तो मुझे डाटा साइंस ही तो जान करना था, लेकिन मुझे ये डिफरेंस नहीं पता था ये बेस्ड कौन होगा, डेवलपमेंट बेस्ड होगा या डाटा साइंस बेस्ड होगा, यही समझ में नहीं आ रहा था। तो ओनली वेबसाइट ही डेवलपमेंट करते हैं, अच्छा वेबसाइट अच्छा। नहीं। और डेटा साइंस में तो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि हर चीज़ की डेटा लेने पड़ता है, और ये काफ़ी तक आगे तक चलता है। चलो ठीक है सर, आप अपनी कोर्स को हाँ। स्टार्ट कीजिए। जी जी। हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो डेटा साइंस में ये होता है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ये मान लीजिए गोल्ड, जैसे आजकल गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस मान लो कुछ भी चल रहा है, 25,000 चल रहा है, ठीक है। तो आगे 10 सालों में इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो वो सब प्रेडिक्ट करने के लिए हमको डेटा साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये आगे कुछ सालों में कैसा होगा क्या नहीं होगा, वो सब प्रेडिक्ट करने के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो कंपनी कंपनी के डेटा होते हैं हमारे पास, उस डेटा को पढ़ के कंपनी के लिए कुछ फायदेमंद प्रिडिक्शन करना, और डेटा समझ के कुछ उसमें से कुछ पैटर्न निकालना कि भाई हाँ, सेल्स आप अपनी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गाइस वेट, आई एम आस्किंग योर ट्रेनर, वो शायद लीव कर दिया उन्होंने, कोई टेक्निकल इशू होगा, कौन सा कनेक्ट कर। ओके ओके, वेटिंग वेट। या ओके वेटिंग पे। सर, उसने बता रहा था ये बिलीव हो गए हैं। नहीं, सर तो है ना, सौरभ सर है अभी। अच्छा, लीव किस नहीं हो गए? पता नहीं, सौरभ सर तो दिख रहे हैं, मेन सौरभ सर है। मैं तो दिखा ही नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। नहीं, सौरभ सर दिख रहे हैं। और मैं हूँ, ये स्टूडेंट है कोडिंग, अभी अखिलेश कुमार भी है। दिख रहे हैं, सौरभ सर भी दिख रहे हैं। हाँ। अब बिहार में कहाँ पास हो, मैं बिहार में रहा कहाँ? हूँ। बगल समस्तीपुर। शहबाज समझते, चलो बढ़िया यार। ओके। मैं दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे। यस 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 सर, आ गए हैं सर। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ ना आपको? यस सर, यस दिख सर। रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके सर।
हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम शेयरिंग। ओके, सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, किसी को मालूम है? नहीं। ओके, देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि हम लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे, आप सब लोगों को पता है अब, राइट? कंप्यूटर में हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के साथ अगर आपको काम करना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट? जी। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो है पाइथन। ठीक है, ओके। यस। पाइथन। तो इसकी लैंग्वेज सीख के ही आप इस पे काम, कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो डेटा साइंस हो या आपका हो फुल स्टैक। ठीक है, कोई भी हो, तो आपको इसकी लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ेगी। तो पाइथन वो है लैंग्वेज। कंप्यूटर से काम करवाना है हमें अब। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, यस। इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, तो पाइथन इज द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुइडो वॉन रूसम। तो ये आपको जो फेस दिया है ये है फाउंडर। ठीक है, ये है फाउंडर पाइथन के। ठीक है, क्या नाम इनका? क्या है नाम इनका? फोटो बैंड क्वेश्चन। हाँ, गुइडो वॉन रूसम। रोसम। तो 1991 में इन्होंने पाइथन रिलीज की थी। ओके। तो हाँ, दूसरे सवाल की पाइथन क्या कर सकता है, ये वो मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत सारे टास्क हमारा पाइथन यहाँ पे कर सकता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना। जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, प्रयुक्त की वेबसाइट हो गई, आपका फेसबुक हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो होती हैं वो पाइथन से बना सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप पाइथन का यूज करके डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, जो कि हम लोग करेंगे कोर्स में। तो डेटा एनालिटिक्स भी आप कर सकते हो। ऑलराइट। ठीक है। और नेक्स्ट चीज है कि डेटाबेस। जैसे ये आपको डेटाबेस दिख रहा है, तो डेटाबेस में भी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हो। किसी को आइडिया है डेटाबेस क्या होता है? नो सर। अच्छा, डेटाबेस ये होता है कि जैसे आपका किसी भी, जैसे यूट्यूब, मान लो कि यूट्यूब पे आपका आईडी है। ठीक है, तो आप कोई भी वहाँ पे वीडियो अपलोड करोगे, तो वीडियो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगी, कहीं ना कहीं सेव होगी, राइट? जी जी। तो यूट्यूब के पास डेटाबेस है अपना, तो वहाँ पे डेटाबेस में आपका सारा डेटा, वीडियो जो हो रहा है, स्टोर होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। जी जी। हाँ, तो वीडियो तो इस डेटा, तो इसके अंदर डेटाबेस में डेटा डालना और निकालना पाइथन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स के बारे में किसी को पता है कि क्या होता है ये? नो सर। डेटा को डेटा एनालाइज एनालिटिक्स होता है कि जैसे आपको पता है, करना। हाँ हाँ राइट। तो जो आपके पास डेटा होता है उसको एनालाइज करना। जैसे कि उसमें मान लो कि वोडाफोन कंपनी का आपके पास डेटा है, तो क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं आप उसमें? मतलब जैसे कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन कंपनी आती है, तो उसमें जो डेटा निकलते हैं, जैसे कौन लोग क्या ज़्यादा हम्म। परचेज कर रहे हैं, किस एज के क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हाँ इसको उनको ऐड दिखाना भाई। हाँ, करेक्ट, वेरी नाइस, तो वेरी वो अपन डेटा एनालाइज वेरी कर। नाइस, वेरी नाइस। कौन स- हाँ हाँ, वो बहुत बढ़िया। कि कौन सी एज वाली ग्रुप को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, और उस प्रोडक्ट के साथ
मान लो कि जैसे आपने शर्ट लिया तो उसके साथ आप क्या ले रहे हो, टाई ले रहे हो या पैंट ले रहे एक हो, के साथ ये टाई सब डे समझना डेटा का है ना। इस डेट टाइप की। हाँ, करेक्ट। ये सब चीजों का एनालाइज करना है। जो बोलते हैं हम लोग, तो उसमें हाँ एनालिसिस करना, राइट। क्योंकि क्योंकि अगर और भी लोग खरीदेंगे फिर आप लोग को ना, इसलिए मैं डेटा के हिसाब से चीज रिकमेंड करता हूँ, राइट। किसी ने उस शर्ट के साथ टाई लिए तो आप टाई ला सकते हो, नए वाले यूजर को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया 1 2 3। हाँ, नेक्स्ट हो गया हमारा पाइथन इज यूज टू बिल्ड एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल। एआई मतलब वही आर्टिफिशियल, मैंने जैसे वो बताया था कि एआई आप बना, जैसे चैट जीपीटी यूज करते हो आप यहाँ पे, ये सर कोई भी। मैं यूज करता हूँ। हाँ, तो चैट जीपीटी वाली चीज, हाँ, तो चैट जीपीटी जैसी चीजें आप बना सकते हो। ठीक है, ये है। तो पाइथन आजकल बहुत बूम कर रही है, इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो आप, ठीक है, पाइथन से। तो और मैं एक चीज बताऊं कि ये बहुत इजी भी है, ठीक है, ओके। बहुत इजी है, आप आराम से सीख सकते हो, और बहुत यूज भी है इसका। इसके इजी होने के चक्कर में ही आजकल बहुत ज्यादा इसका हर टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। इसके इजी होने के चक्कर में क्योंकि लोग सीख लेते हैं बहुत इजीली। इवन स्कूल के स्टूडेंट भी सीख सकते हैं और आप भी सीख सकते हो। मैंने तो स्कूल के स्टूडेंट्स को भी देखा है, बहुत इजीली इसको सीख जाते हैं। देखो स्कूल में 5वीं ग्रेड के स्टूडेंट्स। हाँ टॉपिक ही भी आ गए ना स्कूल में अब पाइथन सिखाने का। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, करेक्ट करेक्ट, अब तो स्कूल में भी पाइथन होती है, राइट, सही बोल रहे हो। आने लगे हैं ये लोग। और कॉलेजेस में भी हो गई है। कॉलेज में तो होती है, पर स्कूलों में भी टॉपिक आ गए हैं पहले पाइथन। सी चलता था, सी बहुत ही, हाँ पहले सी होती थी और सी बहुत मुश्किल है। C++ थोड़ी मुश्किल है, और पर सी प्लस प्लस पाइथन जावा में भी कई वो सारे कंसेप्ट हैं, पर पाइथन इज और इजी। जी। तो हम लोगों को पाइथन करनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पाइथन हमारी विंडोज पे चल जाती है, मैक पे चल जाती है, लाइनक्स, रास्पबेरी पाई, सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल, बहुत इजी, सिंपल, जैसे इंग्लिश होती है वैसे ही सिंपल ये होती है, ठीक है। पाइथन, तो ये हो गया हमारा। और पाइथन के अंदर होता है एक हमारा इंटरप्रेटर सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर, ठीक है। जैसे आपने पाइथन का ये कोड लिखा, एक ट्रांसलेटर होगा, वो इसे ट्रांसलेट कर देगा, और उसके बाद ही चली जाएगी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर, ये आपने तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, ठीक है, भले ही पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ पर लिखा इंग्लिश में है, तो इसलिए ट्रांसलेटर से कन्वर्ट कर देगा 1 0 की फॉर्मेट में, और वो चला जाएगा कंप्यूटर में, और कंप्यूटर समझ जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को 1 0 वाली समझ में आती है, हाँ वो तो 0 1 ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर में। हाँ, बाइनरी डेटा जिसे बोलते हैं, तो वो समझ में आता है, कंप्यूटर को इंग्लिश वगैरह कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है, इंटरनली जो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें हमारा ट्रांसलेटर सिस्टम होता है, और एक चीज़ है हमारे पाइथन में, एक और होती है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है ना कि डेटा साइंस वाले जो लोग हैं, डेटा साइंस वाले, वो ये नहीं पढ़ेंगे, डेटा साइंस वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जो फुल स्टैक वाले हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेटा साइंस वालों को जरूरत है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये टॉपिक ना भी करें चल जाएगा, पर फुल स्टैक वाले जैसे अखिलेश है यहाँ पे, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और ये टॉपिक क्यों पढ़ा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस टॉपिक से बहुत बड़े बड़े जैसे प्रोजेक्ट होते हैं वो आप बना सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो? नो 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 सर। नो सर। ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन। देखो कंप्यूटर में अभी इंस्टॉल तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक काम करते हैं कि मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो गूगल फटाफट खोलो आप, गूगल। गूगल पे जाके आप सर्च करो गूगल कोलैब। एक काम करते हैं, कोई अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, ठीक है। और जी, अपनी स्क्रीन मेरे को एक बार शो करके दिखाओ। नीचे एक बटन है शेयर नाम से। मेरा तो देखने देखिएगा बटन। बोल क्या शेयर ऑप्शन? नाम शेयर नाम से एक बटन है, वो दबाओ पहले। आप शेयर स्क्रीन कर रहे हो उसमें। आ गई क्या सर? हाँ, अब दिख रही है। हाँ हाँ। जी सर। अब क्या करना है सर? तो हाँ, इसको ओपन, मैक्सिमाइज करो इसको जरा एक बार अपने। जी सर। नहीं नहीं, वो टैब मैक्सिमाइज करो एक बार। तो टैब को पूरा खोलो एक बार। अच्छा, वो गूगल वाला? हाँ। जी सर। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा नीचे जाओ। हाँ, ये जो दिख रहा है ना गूगल कोलैब, हम्म। इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये आ गया सर। हाँ, तो इसमें अब है न्यू नोटबुक। ये नीचे वाला है। न्यू नीचे नोट। भी है, नीचे भी है, बीच में भी है। हाँ हाँ, वो खुल रहा है। हाँ हाँ, सब ऐसे खोलो, ठीक है। लोडिंग ज़्यादा चल रहा है। हाँ हाँ, लोडिंग हो गई अभी। ठीक है, ओके। तो जितने भी हमारे पाइथन के कोड है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ठीक है, अब ये खोल के रखो और एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये खोल के रखो। अब मैं अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दो। स्टॉप पे सर। फाइल। एक स्टॉप करने का रेड बटन दिख रहा होगा, एक आसपास देखो कहीं। रेड तो नहीं दिख रहा कहीं से वो। अच्छा, ऊपर स्टॉप। हाँ हाँ वो भी सर स्टॉप। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जैसे आपने खोल लिया, जी सर। न्यू नोटबुक आपने बनाई थी। जी। और आपको क्या करना है, इस नोटबुक को नाम देना है एक।
ठीक है, यहाँ नाम चेंज करो, यहाँ पे आप लिख सकते हो पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल। आज 30 नवंबर है तो 30 नवंबर आप लिख सकते हो, 30 नवंबर बैच। ठीक है, यहाँ नाम देख लो। हो जाए तो बता देना। सर हो गया मेरा। ओके सर मेरा भी। ओके ओके। सर मैं क्या बोला था नेक्स्ट आपकी करना है आपको? सर मैं क्या बोला था, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही सर, कहीं कहीं रुक जाती बीच बीच में। अच्छा, चलो कोई नहीं, कनेक्शन मैं ठीक कर लूंगा। अभी सही आ रही है? हाँ अभी सही आ रही है। ठीक है। तो देखो, ये जो ब्लैक वाला हमें दिख रहा है, आपके में ग्रे दिख रहा होगा, इस पे हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे दो बटन दे रखे हैं। एक, जैसे ही ये वाले जो जिस पे कोड लिखेंगे हम लोग वो लिखना है, तो आप कोड दबाओगे तो बहुत सारे शेल बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। बनते जा रहे सर। हाँ, और ये टेक्स्ट इसलिए है कि यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि जैसे यहाँ पे पाइथन स्टार्ट्स, पाइथन स्टार्ट्स, और यहाँ पे जब इसको टॉप हेड इसको दबाओगे टी, तो क्या थोड़ा बड़े बड़े लिखा जाए, बड़े टेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, जी जी। लिखा गया। और आप कहीं और क्लिक करोगे तो पूरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। जी सर अभी। ठीक है, तो हेडिंग आप ऐसे लिखोगे। अब इस हेडिंग लिखने का बहुत फायदा है, आप लिखना शुरू करो। कोई भी हम लोग कुछ करेंगे तो आप ऐसे हेडिंग जरूर लिखना उस टॉपिक का नाम। ठीक है। होता क्या है कि ये जो, अगर आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी आपकी हेडिंग है आ जाएगी ऐसे। ठीक है, बहुत सारी हेडिंग आ जाएगी। तो आपको कभी भी मतलब पाइथन पढ़नी हो और टॉपिक पे जाना हो, पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहाँ क्लिक करके उस वहाँ पे उस लोकेशन पे जा सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग डालना मत भूलना। तो पाइथन यहाँ से शुरू होती है, और हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शुरू होने वाला है वो है कमेंट्स। तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो, एक बार यहाँ क्लिक करो, टेक्स्ट दबाओ तो नेक्स्ट उसके आ जाएगा टेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स जरूर लिख लेना आप। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लिख लेना तो बता देना मुझे। सर कमेंट्स में क्या लिख सकते हैं? बस कमेंट्स में ही इतना लिखो, आप इतना लिख लिया आपने हेडिंग? हाँ कमेंट्स लिख लिया सर। ठीक है, यस सर लिख लो। तो कमेंट्स अब आते हैं हम लोग अपने, कि कमेंट्स होता क्या है। कमेंट्स
तो comments can be used to explain Python code. Comments can be used to make the code more readable. ठीक है, तो कमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कमेंट क्या होता है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं एक फंक्शन होता है प्रिंट। प्रिंट ब्रैकेट प्रिंट ब्रैकेट 12। अगर मैं ऐसे लिख के और यहाँ पे रन का बटन दबाऊं तो उसका एक आउटपुट आएगा। ठीक है, जो आपने कोड लिखा है उसको रन करोगे तो एक आउटपुट आपको दिखेगी। तो रन कैसे कर पाएंगे? रन का बटन ये रहा। चीजें। हम्म, क्या रहा आउटपुट यहाँ? हम्म, अभी तो कुछ निकला नहीं। मेरे स्क्रीन पे क्या आ रहा है? अब में 1 2 लिख के आ रहा है। 12 12। ठीक हाँ, है, सिंबल बना हुआ है बगल बगल। तो अगर आप प्रिंट करोगे हाँ, मेरे भी आ रहा है यहाँ वैसे। पे, अगर 1000 प्रिंट करोगे तो फिर क्या आ रहा है? उसी में कि दूसरे में? दूसरे में। दूसरा ऑप्शन। 1000 लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कुछ जैसे ऐसे लिखो प्रिंट और डबल ब्रैकेट लिखो और उसमें अब लिखो अपना नाम, जैसे मान लो मैंने लिखा स्टू वैली। अगर मैं इसे रन करूं तो क्या लिखा रहा है आउटपुट में? सचिन नाम ही आ रहा है। ठीक है, तो आप ये डबल कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, अगर ये नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी इसमें। ठीक है, वर्ड के लिए हम लोग डबल कोड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी लगा के रखो। ठीक है, तो आते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या होता है? जैसे मान लो मैंने अभी, ये कमेंट नहीं था, कमेंट के बारे में टॉपिक नहीं था, ये सिर्फ प्रिंट मैंने बताया। प्रिंट किस लिए यूज होता है? प्रिंट हमारा आउटपुट को शो करने में काम आता है। ठीक है, इसे पेट लेके डायरेक्ट 12 लिखते तो डायरेक्ट 12 आ जाएगा। क्या लिख दें डायरेक्ट? ये पिंटे का कोष्टक में 100 लिखे अपन ने। हाँ हाँ, आ जाता है, पर ये तरीका सही नहीं है यार। मतलब ठीक है, पिंट ने डायरेक्ट 100 लिखते, 1000 लिखते तो डायरेक्ट 1000 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, पर आपको वैसे लिखना नहीं है, ये हम लोगों को पाइथन का यूज करना है। ठीक है, पाइथन का फंक्शन है प्रिंट। ठीक है, ये तो कोई भी शब्द लिखना है तो पहले पेंट लिखेंगे, फिर इसके बाद कोई शब्द लिखेंगे। अ, हाँ, पर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं धीरे बताऊंगा। हर जगह जरूरी नहीं है ये। ओके। प्रिंट वही लिखते हैं जो चीज़ हम लोग आउटपुट स्क्रीन में देखना चाहते हैं। ठीक है, हर चीज़ प्रिंट नहीं करनी है। ठीक ठीक है है, ठीक आगे बढ़ते हैं। हाँ, धीरे बताऊंगा क्या क्या है। जैसे मान लो मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पे, प्रिंट 12 + 12। अगर इसको रन करूँ क्या आ रहा है? 12 + 12। हाँ, वो तो सिंबल वो आ रहा है। मल्टीप्लाई पे प्लस कर दो। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, 24 आ रहा है। 24 वाला मैं 154 में मल्टीप्लाई कर दिया था ना। ठीक ठीक है, ओके। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा आपने 100 - 50, चलो 60 कर लो, 40 आ रहा है। ठीक है, हम्म ये तो कैलकुलेशन आप कर रहे हो। अब कमेंट क्या होता है बताता हूँ। कमेंट क्या होता है कि आपने यहाँ पे इस प्रिंट से पहले आपने लिखा हैशटैग आई वॉज एडिंग टू नंबर्स। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूँ अगर,
पर ये पेंट को तो हो जाएगा, इसमें लिख नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो आप? जो पेंट है ना, इसके ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, जो आप लिख रहे हाँ हैं। तो प्रिंट यहाँ पे अपना कर्सर ले आके एंटर मारोगे ना तो थोड़ी जगह बन जाएगी। अच्छा हाँ, बन गए। हम्म। ठीक है, तो देखो ये मैंने रन किया और ये मेरे को सेंटेंस नहीं दिख रहा अब नीचे। ठीक है, दिख रहा है सेंटेंस ये वाला, आई वॉज एडिंग वाला दिख रहा है? ठीक है सर। नहीं नहीं, आपको इधर तो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, पर यहाँ आउटपुट में दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा सर। हाँ, तो कमेंट इसीलिए काम आता है। आपके जो कोड आपने लिखा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको लिख दो। एक्सप्लेन करके क्यों लिखना? क्योंकि कल को मान लो आप जो कोड लिख रहे हो, कल को कोई दूसरा आदमी पढ़े, दूसरा इंजीनियर पढ़े, तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ भाई आपने ये काम किया है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से नोट्स, कोड के साथ एक नोट्स। ठीक है, जी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं कमेंट? अब वो सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर है यार, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का हमारा। ठीक है, आई एम प्रिंटिंग माई नेम हेयर, तो ऐसे अपना नाम प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमेंट। तो इसमें जो आपने लिखता है बस वही बस तो दिखता है, बाकी तो उसमें कुछ इशू नहीं हो रहे, मतलब कुछ सच निकल रहा वो। अपनी स्क्रीन दिखाओ आप, कोई इशू है तो। नहीं नहीं, जो आपने लिखा है ना बस वही लिख के आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मतलब जो प्रिंट, देखो जो हम लोग प्रिंट के अंदर लिखेंगे सिर्फ आउटपुट में वही दिखेगा, राइट? और जी। आपको कमेंट वाला चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि हाँ कमेंट वाले के पहले हमने हैश लगा दिया। हाँ, ठीक वो है, नहीं दिख। कोई भी नोट्स लिखना है तो आप हैश लगा के लिखना, अगर हैश भी नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली ये समझा हमने कि अपने प्रोग्राम के साथ कोई नोट्स लगाना हो या एक्सप्लेन करना हो कोड को, तो आप कमेंट से कर सकते हो। ठीक है, सचिन, जी रवि, सर। अखिलेश, ठीक है, ओके सर। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और हाँ, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नो सर। ठीक है, तो मैं इसका एक चीज एक काम और करता हूँ, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे मैंने मैंने लिखा कि आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स हेयर। अब आप जाके यहाँ पे हैशटैग लगाओगे, इससे बढ़िया ये है कि आप इस पे यहीं पे रह के आप दबा सकते हो कंट्रोल और स्लैश। ठीक है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और स्लैश, ये भी दबाओगे तो कमेंट हो जाएगी। ठीक है, नहीं, कैसे मतलब समझ नहीं पाया मैं। कंट्रोल और स्लैश दोनों दोनों एक सर। साथ में दबाओगे ना हाँ। तो कमेंट हो जाएगी। करके देखो हो रहा है, अपनी स्क्रीन दिखाना, ये तो कुछ तो हो नहीं रहा। दिखाना स्क्रीन दिखाना अपनी। एक सेकंड, मतलब शेयर करूँगा। कौन सा कंप्यूटर है, विंडो है ना? हाँ, विंडो। ये आगे से शीट। हाँ लिखो, कोड कुछ लिखो, कमेंट लिखो कुछ। नहीं, नहीं शॉर्टकट। अभी हैशटैग मत लगाओ, अभी सिर्फ सेंटेंस लिखो कोई, क्या लिखूंगा? कि लिखो कि माय नेम इज सचिन, यस। कंट्रोल स्लैश दबाओ। कंट्रोल स्लैश।
ये आ रहा है सर। नहीं नहीं, तुम कोई कंट्रोल स्लैश दबाना है, तुम शायद डॉट दबा रहे हो। नहीं, स्लैश ही दबाया मैंने, एक सेकंड। ये आ गया, हाँ। कौन सा दबाया अब? हाँ, स्लैश सही दबाया मैंने, वो गलती से दूसरी बटन दबा दिए थे। हाँ, मैं बोला ना वो डॉट दबा दिए होगे। यस, दबा दिया था मैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया, तो ठीक है, ये है हमारा शॉर्टकट। ठीक है। अच्छा, एक काम और करो, मल्टी लाइन कमेंट हो तो वो कैसे करना है? तो सचिन, कुछ मल्टी लाइन लिखना, मतलब कि इसके नीचे और लिखो माय नेम इज, यहाँ नीचे लिखो कि नीचे नीचे कि आई एम स्टडिंग इन स्टू वैली। स्टू वैली। जी जी सर। तो वैली। नीचे जाओ, फिर लिखो आई एम डूइंग पाइथन। हाँ, अब देखो ये मल्टी लाइन है, ठीक है, बहुत सारी लाइन है। जी जी। ये 10 20 30 कितनी हो सकती है? अब सबको साथ में कमेंट करना है, तो कैसे करोगे? अब हर हर लाइन पे जाके हैश लिखोगे नहीं, ठीक है। जी इसमें क्या करना है कि सेलेक्ट कर लो दोनों लाइन को माउस से। हाँ, कवर कर लो पूरा। हाँ, अब दबाओ कंट्रोल स्लैश। आ गया सर। ठीक है। हाँ, तो अ, रवि कहाँ गए? चलो कोई नहीं। तो ऐसे ठीक है, मल्टीपल लाइन हो तो ऐसे कमेंट करना है। अच्छा, एक बार दबाओ, फिर से दबाओ कंट्रोल स्लैश। वो हट अभी गया, सर। ठीक है। हट भी जाता है, लग भी जाता है, ठीक है, उसी हट से। तो हमने कमेंट पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है कल, हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। और भी टॉपिक है वेरिएबल्स के साथ, फिर उसके बाद वेरिएबल्स रूल, डेटा टाइप, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। कोई डाउट पूछ लो, नहीं, डाउट तो नहीं। टाइम ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, मैं ये चलो, बोल रहा था, हैव अ गुड इसकी डे। कल, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल प्रयुग, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हाँ, प्रयुग नाम से है। ठीक है। ठीक है, हैव अ गुड डे अखिलेश, सचिन। ठीक, ओके सर, बाय बाय, थैंक। कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।